تمام اسٹوڈنٹس کائنڈلی اس چیز کو انشور کریں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کم از کم 10,000 اسٹوڈنٹس یا 5,000 اسٹوڈنٹس یہ نمبر پہ میسج کریں پی ایم سی کے ایشو کو، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ ہے، ٹھیک ہے، پی ایم سی کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں ان کو میسج کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے جتنے میکسیمم اسٹوڈنٹس کے ہمارے پاس فیڈ بیک آئیں گے ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کو فوری طور پہ طلب کریں گے اور ان سے تمام جوابات پوچھ کے انہیں آپ کے کنسرنز بتائیں گے اور جلد از جلد سالو کرو۔ بات یہ ہے بھائی کہ خود بھی چین کا سانس لو اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی چین کا سانس لینے دو۔ یہ تو ظاہری بات ہے، ہر سال لاکھوں کے اسٹوڈنٹس کا ادھر انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے سیٹ چند ہی سیٹ ہے جن میں کچھ اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی اسٹوڈنٹس 80 یا 85 ایگریگیٹ لیتا ہے وہ سلیکٹ نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فیل ہوا۔ بس جو اصل مسئلہ ہے آپ لوگ اس ایشو کو اٹھائیں، ہمارے ساتھ وسائل کی کمی ہے، سیٹس کی کمی ہے، اس کے لیے آواز اٹھاؤ کہ سیٹس کو زیادہ کرو، میڈیکل کالج ان چیزوں کو پروموٹ کرو۔ اب ظاہری بات ہے اگر ہم ادھر کیپیکا کی بات کریں تقریباً 700 کے قریب سیٹ سے ٹیسٹ میں 46,000 اسٹوڈنٹ اپیئر ہوئی ہے، تو ظاہری بات ہے 700 ہوگی۔ باقی اس کا مطلب تو نہیں کہ وہ لوگ نالائق ہے یا انہوں نے ہمت نہیں تھی، اصل مسئلہ ہے وسائل کم ہے، سیٹس کم ہے۔ تو بجائے کہ آپ لوگ سیٹس انکریز کے لیے میڈیکل کالج ان چیزوں کی آواز اٹھائیں، کیوں مسئلے بنا رہے ہیں؟ یہ تو ظاہری بات ہے 700 اسٹوڈنٹس ہو جائیں گے، باقی 45,300 اسٹوڈنٹس فیل ہے۔ اب یہ ایک طرف پر وہ 700 اسٹوڈنٹس، دوسری طرف پر وہ 45,000 کتنے بن رہی ہے، وہی اسٹوڈنٹس ایک ساتھ ہو تو ظاہری بات ہے آواز انہیں لوگوں کا اونچا ہوگا۔ تو مسئلے مسائل نہ بناؤ، آرام سے بیٹھو اور باقی کو بھی جینے دو۔ یہ جو کہ بھی کیسے بھائی بات کر رہا ہے، بھائی صاحب خود تو پتہ نہیں کتنے نمبر لے کے بیٹھ گئے ہو۔ یہ ایشو جو ہے یہ صرف کے پی کے اور صرف پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ سیٹس بڑھانے کی بات جو ہے وہ اپنے وقت پر کی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم اپنے نمبر جو ہم نے محنت کی ہوتی ہے پورا سال، وہ ہمیں نہیں صلہ دیا جاتا ہے، اور آپ سیٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ جو سیٹس ہے ان کا میرٹ نہیں بنتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں بڑھا دینی چاہیے، باقی فیل ہے تو فیل ہے۔ آپ لوگوں نے کیا تیر مارا ہے کہ پی کے کا بھی ٹیسٹ رزلٹ ہم نے دیکھ لیا ہے، اس میں کتنے فیل تھے۔ اتنا آسان ٹیسٹ پورے پاکستان میں نہیں بنا ہے، اور آپ لوگ اس میں 40% فیل ہو رہے ہو۔ تو یہ بات نہیں ہے، اگر بات کرنی ہے، حق کی بات کرنی ہے، تو جو بچے محنت کرتے رہے پورے سال ان کو بھی اپنا حق نہیں ملا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے کہ بھئی آرام سے بیٹھ جائے، خود تو بس نکل گئے وہاں، دوسروں کو چھوڑو۔ میم زرما اگر دزما۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں کوئی نہیں بنتا آپ کی سوچ کو غلط ثابت کرنے والا۔ آپ صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، پاکستان میڈیکل کمیشن نے 6,000 اسٹوڈنٹس 6,000 روپے لیے فیس کے، ٹھیک ہے، سال میں وہ ایک پیپر نہیں بنا سکے، ٹھیک ہے، آپ ان سے سوالات کریں، وہ آپ مجھے بتائیں سندھ میں پیپر ایک دن پہلے لیک ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں پین سے سالو کروایا گیا پیپر، سندھ میں پینسل سے کروایا گیا۔ اسٹوڈنٹس کو اتنے نمبر نہیں ملے جتنے انہوں نے کاربن کاپی میں ہونے چاہیے تھے، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کو کوڈ اے اور کوڈ بی میں انہوں نے خود مانا کہ 9 غلطیاں ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، آنسر کی میں ہی جب غلطی ہے تو ہم کس طرح ان کے آنسر کی کو مانیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک پیپر وہ بناتے ہیں پورا سال، وہ بھی وہ صحیح طرح سے نہیں بنا سکتے۔ اور پی ایم سی کے پریزیڈنٹ نے تسبیحاں پڑھی تھی کہ ہم اپنے حساب سے پیپر اس طرح بنائیں گے کہ تمام کسی بھی پروونشل ٹیکسٹ کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، جنرل کریکولم ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو ہماری بکوں میں پیپر لکھا ہوا ہے، چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو انہوں نے غلط چیز آنسر کیز میں دیا ہے، صحیح آؤٹ آف سلیبس کوشچنز ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، آؤٹ آف سلیبس کوشچن ڈالنا ضروری ہے تاکہ ٹیم کو الگ کر سکیں۔ یہ اس طرح کیوں کیا انہوں نے کہ انہوں نے سن میں پیپر کو ایک دن پہلے لیک ہوا، اس کی کون انویسٹیگیشن کرے گا؟ ٹھیک ہے، جن کو انہوں نے سیٹ دیں تھی انہوں نے بھیج دی، جن بچوں نے میٹرک ایف ایس سی میں خوار ہوئے وہ کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، آپ کے ابا ان کی پرائیویٹ کی فیس بھر دیتے، تو ہم ویل اینڈ گڈ، ہم ان سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اسٹوڈنٹس آواز اٹھاتے ہیں انہیں اٹھان دیا کریں، غلط کسی چیز کو مت بولیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک چیز غلط نہیں ہے تو پھر آپ اس پر خاموش رہیں، آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ 20,000 سیٹس ہیں تو ہر کسی کو سیٹ نہیں مل سکتی، لیکن 20,000 بچوں کو جس طرح سے سیٹ مل رہی ہے نا، اس 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کو سیٹسفائی کرنا ضروری ہے۔ 2 لاکھ اسٹوڈنٹس نے محنت کی ہے، کوئی بھی ماں باپ ایسے ہی فیس نہیں بھر دیتے، ان کے بچوں نے کچھ تو محنت کی ہوتی ہے۔ اگر بچے نے محنت نہیں بھی کی، دیکھیں میں نے محنت نہیں کی پھر بھی میں آواز اٹھا رہا ہوں، کیونکہ ایک ناانصافی ہوئی ہے، غلط طریقے سے بچوں کو پاس کر کے پیپر دیا گیا ہے۔ اب جائیں فاروق ستار وغیرہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے رائٹس آپ جا کر سنیں، ان کی
पॉइंट सुने, आप मुझे बताएं, एक भी गलत साबित करने में मान जाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपको पेपर लेना है फेयर लें, आउट ऑफ सिलेबस डालना है डालें, ठीक है, लेकिन पेपर एक तरह का होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए यकसा मौके होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा था पेपर हर किसी का जो लेवल होगा वो सेम होगा, ठीक है। पंजाब के स्टूडेंट्स ने इस्लामाबाद में पेपर किया, उनका बहुत ईजी था और उन यूएचएस का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। पेपर में जो इस्लामाबाद वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने हर चीज़ को सुना, उस पर एक्शन लिया, ठीक है, हर चीज़ की माना गलती हुई लेकिन उन्होंने कबूल किया, उसे ठीक किया, लेकिन इन्होंने कबूल भी नहीं किया, ठीक है। और इस तरह से इतनी बेवकूफ़ियों से उन्होंने एग्जाम एनालिसिस उसी यूनिवर्सिटी को दे दिया जिसने इतनी गलती की। मुझे पता है आप एक गलती करते हैं, कोई मानता है अपनी गलती? कोई नहीं मानता। उन्हें अपने एंड पे एनालिसिस रखना चाहिए था। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का मतलब ये है, कानून ये कहता है, कमीशन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पास तमाम इख्तियार होने के बावजूद उन्होंने तमाम इख्तियार प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी को दिया। अभी भी कह रहे हैं हम उनको राब्ता करें, ठीक है, ठीक है, बहुत गलत किया, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स यूएचएस वाले थे उन्होंने इस्लामाबाद में जाके टेस्ट दिया, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि जब इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स इस्लामाबाद में हक है, ठीक है, वो इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में भी ले सकते हैं, सिंध में भी ले सकते हैं। जब सिंध में इतना मेरिट कम होता है तो अब उनकी वजह से जहाँ पे पेपर डिफिकल्ट बना था, जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इतनी फैसिलिटीज नहीं दी हुई, वो दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट्स आके उन सीट्स पे कब्जा करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका मेरिट ज्यादा है। उन्होंने पेपर इजी दिया, उन्होंने पढ़ा भी अच्छा है अपने प्रोविंसेस में। पंजाब और केपीके में अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, जबकि यहाँ सिंध में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो स्कार्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बावजूद स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इन्हें चाहिए था कि पेपर को ठीक कर दें। एक भी पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन रॉन्ग आंसर कैसे हो सकते हैं? हमारा मुतालबा है कि पेपर को अपलोड किया जाए, ठीक है। 30 से 38 क्वेश्चन अगर एक पेपर की यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर खुद कबूल करता है कि उन्होंने गलती की है और 19% बनता है पेपर का, अगर आप 38 क्वेश्चंस के हर किसी को ग्रेस मार्क्स दे दो, ठीक है, 9 क्वेश्चंस रॉन्ग और बाकी 30 आउट ऑफ सिलेबस, तो बताएं इस पेपर का क्या फायदा हुआ? सबको ग्रेस मार्क्स देने पड़ेंगे, ऐसा किसी पेपर लेने का क्या फायदा होता है? ठीक है, तो ऐसे पेपर लेने का कोई फायदा नहीं होता और ये रिकंडक्ट भी नहीं करवा रहे। बताएं जिन्होंने मेहनत की 2 साल की वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, अगर आप करवा देते हैं आपके अपना एडमिशन तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको स्टूडेंट्स के डिटेल्स भेज देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों से अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो अभी फ्रेशर है उनको 3% फर्स्ट ईयर में मिला है और उनको मैट्रिक में भी मिला है। तो ये जो 2021 में जिन्होंने एफएससी किया है उनके साथ सरासर ज्यादती है भाई, इसलिए हमें इसके खिलाफ भरपूर आवाज। इरफान साहब आप आवाज उठाएं प्लीज, ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। अब अभी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट उनका जो कौन कर रहा है, इससे तो बहुत ही हक तलफी हो रहा है जो 2021 में एफएससी किया जिन्होंने उनके साथ, इसलिए प्लीज आवाज उठाएं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस ग्रुप से मैं पिछले साल से हूँ ना, मैंने भी बहुत नसीहत किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद भी अभी टेस्ट क्लियर हुआ है, लेकिन सिर्फ एग्रीगेट का मसला बन रहा है ना। लास्ट ईयर पे मेरे बहुत बुरे मार्क्स आए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और हर किसी को मैंने यही नसीहत की कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, स्ट्रगल करो, वक्त आएगा। वही वक्त आ गया, हम सबका टेस्ट एक ही दिन हुआ, फिजिकल हुआ जब इरफान यूसुफ ने ग्रुप बनाया था और हर किसी ने हेल्प की थी ना वो पैसे वगैरह केस के लिए। बस अभी सिर्फ सवाल हमारा जो वो है ना क्वेश्चन हमारा ये कि इलेक्टिव हो या सबके लिए या फुल हो सबके लिए, क्योंकि मेरे मार्क्स की वजह से ईटा में एक आधे ईटा के की में पीएमसी के रिजल्ट में मेरे 10 नंबर डिक्रीज हुए। इसके अलावा जब अभी ये इलेक्टिव नंबर का बता रहे ना कि जो ओल्ड स्टूडेंट है, मैं 2020 से हूँ ना, मैं अभी ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो अगर मेरा वो मार्क्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल फुल मार्क्स में मेरे एग्रीगेट आ रहा था 85 और अगर अभी मैं इलेक्टिव करूँ तो उसमें आ रहा है 82, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। या तो सबके साथ करे इलेक्टिव या सबका एक ही कर दे फुल। यार आप, मुझे लगता है आपको यानी खुदगर्जी, मतलब वो वाली बीमारी है आपको। 2 लाख स्टूडेंट से 2,10,000, इनमें से सारे पागल नहीं हैं जो
किप्स भरे होते हैं, जो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो इंस्टीट्यूट जो तैयारी करवाते हैं, वो बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते हैं और सारे जो है ना 12-12 घंटे पढ़ते हैं। तो जो जिनका सीट हो गया है वो उनको सामने लाया जाए, हम सारे स्टूडेंट है ना, आपस की बात है। तो जिनका हो गया है तो क्या जो फेल है वो सारे नालायक है, जो निकल गए हैं वो सारे लायक हो गए। तो हम तो यही बात कर रहे हैं ना, ये कहते हैं ना अंधे ने पत्थर फेंक दिया, पता नहीं कहाँ चला गया, जो बच गया वो बच गया, जिस पे लग गया वो लग गया। तो ऐसी बात तो नहीं है ना, ये अंधा तो नहीं होना चाहिए ना ये सिस्टम। तो हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए। अगर आपको मिला है इसका मतलब ये नहीं आप फारिग है तो घर बैठ जाए। हम आपको तलब ही नहीं कर रहे, आप घर बैठ जाए, आपको किसने बुलाया? ठीक है, आपको मुबारक हो भाई, आपको तुक्की का मिला है, अपनी मेहनत का सिला मिला है, जो भी आप हमसे काबिल है, आप घर बैठ जाए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो फेल है और जो फेल नहीं होने चाहिए थे। और मैं उनको यही मैसेज दूंगा ना कि नेवर लॉस द होप, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो मार्क्स आए बस उस पर खुश रहे। जो रिपीट करना चाहते, जो भी करना चाहते, बस मेहनत करे, अल्लाह सिला देगा। चलो इधर आपकी बात को मान लेते हैं, एक और टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, फिर से 2 लाख स्टूडेंट जाके टेस्ट में पेयर हो जाए, फिर से 1000-2000 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, फिर से बाकी 2 लाख स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाए, फिर से वही लोग उठ के कहेंगे कि टेस्ट ये हुआ है और हमें तो ये हुआ था, आउट ऑफ सिलेबस MCQ जाया था, ये था। पूरा साल मौज मस्ती करके ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि KPK का मैंने एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पर अगर 40,000 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे, 700 हो जाते हैं, बाकी 45,300, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नालायक है। 87-88 क्रिकेटर कोई बंदा लेता है तो उसमें दम है, वसाइल की कमी है, उस पर बात होनी चाहिए। भाई साहब हमें ये बातें सब पता है, थैंक यू, आपको मुबारक हो आपकी जीत। हम भी रिपीटर है, हमने भी मेहनत की है। देखिए तहफ़्फ़ुज़ात जो है पहले सिर्फ PMC के हवाले से थे, अब हर सूबे का के अपने तहफ़्फ़ुज़ात है, ठीक है। तो आप काइंडली 1-2 स्टूडेंट से जो इस बात को वो कर रहे हैं कि भाई आपने नहीं आना है तो घर बैठ जाए, आप स्टूडेंट्स को इस हवाले से मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे नालायक है वो निकले हुए हैं। भाई हमारी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को जो है ना मार्क्स की के बाद जो है वो कम आ रहा है, ये क्या मसला है? तो ठीक है, हम मान लिए की में गलतियां हैं, तो की में इस तरह गलती क्यों नहीं आई कि किसी की बढ़ जानी चाहिए, सारे क्यों कम हो रहे हैं? कोई साजिश तो है ना। हम अपने बलूचिस्तान से पूछ रहे हैं ना, लेकिन हमें आवाज़ चाहिए इरफान साहब की शक्ल में कि जैसे हमारे बड़े हैं जो भी है तंजीम वाले है, तो हम स्टूडेंट्स तो अकेले तो खुद कुछ नहीं कर सकते ना। और जो मसला आपका है ना, इसी तरह हज़ारों स्टूडेंट अलग अलग मसले मसाइल हैं। आप KP से आपका वो मसला है, हम बलूचिस्तान से कोई और मसला है, तो क्यों ना हम डिस्कस करें इन चीज़ों को, बजाय कि यार उनको नालायक और फेल सर्टिफिकेट मुफ्त में दे दे। क्यों दे रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आप इतने नालायक हैं, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्यों नहीं हुआ है? ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि 2000 स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाते हैं, बाकियों के लिए मसले मसाइल बना रहे हैं। भाई ये हमारा आईनी हक है कि पेपर जो है वो बुक से आना चाहिए, चाहे मेरिट 99 पे चला जाए, वो स्टूडेंट्स का अपना कंपटीशन है। आपने टेस्ट ही सिलेबस से नहीं बनाया है। आप मुझे ये बताओ, को बताया एक चीज़ का जा रहा है, बलूचिस्तान का पेपर KMC से आया था, हमारी बुक से नहीं आया था। क्या हम सवाल निकलना नहीं बनता है ये भाई, आप हमने पेपर कहाँ से बनाया था? यार मैंने पेपर दिया था ना, मैंने स्टूडेंट्स बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि पेपर हमसे छाप लो, इन्विजिलेटर में कुछ नहीं कह रहे थे, ठीक है। वो पेपर वो कह रहे थे, उनके अब्बा ने प्रोफेसर थे या जो भी थे, उन्होंने। भाई साहब आप अपनी स्ट्रगल की जारी रखें, इंशाल्लाह ये जिनका एडमिशन हो गया है वो तो है ये खुश, उनको भी हम भी मुबारक कहते हैं, भाई आपको मुबारक हो डॉक्टर साहब, लेकिन हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारी है, एविडेंसेस होनी चाहिए आपके पास। जो आप तो माशाल्लाह कराची वाले तो निकले हुए हैं, उनके मुतालबात कुछ न कुछ मान भी ले गई, तो हमारे लिए दुआ करें बलूचिस्तान वालों के लिए, KP वालों के लिए, जिन जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको बात करनी चाहिए। चाहे ठीक है हक मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, जमहूरियत है भाई, जमहूरी मुल्क है, ये तो चलता रहेगा ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो आप कर रहे हो गलत है, हमने पास करे तो हम ठीक थे। आपको किसने सर्टिफिकेट दिया भाई? पास तो हम भी है।